MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویک اینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا۔ پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبد الرحمن نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویک اینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسی کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کی اس تجویزشدہ سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی نہیں، میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا۔ جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصہ میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکا۔ اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو، میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، خالد نے کہا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے۔ مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہ کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت آسانی سے اسے حفظ کر لو گے، بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کس چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے؟ خالد نے قدر حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلی سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا، صغیرہ کبیرہ، اور وہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لاکھ کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے مسئلہ حل کر دیا تھا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا۔ اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی، کہاں سے کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا۔ کون کوئی اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟
फजर की नमाज से कुछ देर पहले उस वक्त बेतहाशा रोया जब उसने पिछले 5 घंटे में याद किए हुए सबक को पहली बार मुकम्मल तौर पर दोहराया। वो कहीं नहीं अटका था, वो कुछ नहीं भूला था, ज़ेर ज़बर की कोई गलती नहीं। आखिरी चंद जुमलों पर उसकी ज़बान पहली बार कँपने लगी थी। आखिरी चंद जुमले अदा करते हुए उसे बड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि वो उस वक्त आंसुओं से रो रहा था। अगर अल्लाह ये चाहेगा तुम खुशकिस्मत होगे तो तुम कुरान पाक हिफ्ज़ कर लोगे, वरना कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे। उसे खालिद अब्दुर्रहमान की बात याद आ रही थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद उसने कैसेट पर अपनी ज़िंदगी के उस पहले सबक को रिकॉर्ड किया था। एक बार फिर उसे किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। उसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा रवानी और लहजे में पहले से ज़्यादा फसाहत थी। उसकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ शामिल हो गई थी। उस पर एक और एहसान कर दिया गया था, मगर उसका डिप्रेशन ख़त्म नहीं हुआ था। वो रात को स्लीपिंग पर्स के बगैर नींद का तस्वर भी नहीं कर सकता था, और स्लीपिंग पर्स लेने के बावजूद वो कभी अपने कमरे की लाइट्स ऑफ नहीं कर सका था। वो तारीकी से खौफ खाता था। ये फिर खालिद अब्दुर्रहमान ही था जिसने एक दिन उससे कहा था, वो उसे कुरान पाक का सबक ज़ुबानी सुना रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि खालिद अब्दुर्रहमान मुसलसल उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए था। जब उसने अपना सबक ख़त्म किया और पानी का गिलास उठाकर अपने होठों से लगाया तो उसने खालिद को कहते सुना, मैंने कल रात तुम्हें ख्वाब में हज करते देखा है। सालार मुंह में ले जाने वाले पानी हलक से उतार नहीं सका। गिलास नीचे रखते हुए खालिद को देखने लगा। इस साल तुम्हारा MBA हो जाएगा, अगले साल तुम हज कर लो। खालिद का लहजा बहुत रस्मी था। सालार ने मुंह में मौजूद पानी गैर महसूस अंदाज में हलक से नीचे उतार लिया और उस दिन उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सका था। उसके पास कोई सवाल था ही नहीं। MBA के फाइनल सेमेस्टर से 2 हफ्ते पहले उसने कुरान पाक पहली बार हिफ्ज़ कर लिया था। फाइनल सेमेस्टर के 4 हफ्ते के बाद 30.5 साल की उम्र में उसने अपनी ज़िंदगी का पहला हज किया था। वहाँ जाते हुए, वहाँ से आते हुए उसके दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं था। कोई तकब्बुर, कोई तफक्कुर, कोई रश्क, कुछ भी नहीं। उसके साथ पाकिस्तानी कैंप में साथ जाने वाले शायद वो लोग होंगे जो खुशकिस्मत होंगे। उन्हें उनकी नेकियों के औज वहाँ बुलाया गया था। वो कुरान पाक हिफ्ज़ न कर रहा होता तो हज करने का सोचता भी नहीं। जो शख्स हरम शरीफ से दूर अल्लाह का सामना करने की हिम्मत न रखता हो, उससे तवक्का रखना कि वो काबा के सामने पहुंचकर अल्लाह का सामना कर लेगा। वो हर जगह जाने को तैयार हो जाता, मगर खाना काबा जाने की जुरात नहीं कर सकता था। मगर खालिद अब्दुर्रहमान के एक बार कहने पर उसने जैसे घुटने टेकते हुए हज पर जाने के लिए पेपर्स जमा करवा दिए थे। लोगों को हज पर जाने का मौका तब मिलता था जब उनके पास गुनाह नहीं होती, नेकियों का ही अंबार होता है। सालार सिकंदर को ये मौका तब मिला था जब उसके पास गुनाहों के अलावा भी कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है, अगर मैं गुनाह करने से खौफ नहीं खाता रहा तो फिर अब मुझे अल्लाह के सामने जाने और मुआज़रत करने से भी खौफ नहीं खाना चाहिए। सिर्फ यही है ना कि मैं वहाँ सर नहीं उठा सकूँगा, नजरें ऊपर नहीं कर सकूँगा, मुंह से माफ़ी के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं निकाल सकूँगा, तो ठीक है, मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं तो उससे ज़्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती का मुस्तहक हूँ। हर बार हज पर कोई ना कोई शख्स ऐसा आता होगा जिसके पास गुनाहों के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। इस बार वो शख्स में सही, मैं सही, सालार सिकंदर ही सही, उसने सोचा था। गुनाह का बोझ क्या होता है? आदमी अपने गुनाह के बोझ को किस तरह क़यामत के दिन अपनी पुश्ती से उतार फेंकना चाहेगा, किस तरह उससे दूर भागना चाहेगा, किस तरह उसे दूसरे के कंधे पर डाल देना चाहेगा, ये उसकी समझ में हरम शरीफ में पहुंचकर ही आया था। वहाँ खड़े होकर वो अपने पास मौजूद और आने वाली सारी ज़िंदगी के दौलत के औज़ भी किसी को गुनाह बेचना चाहता तो कोई ये तिजारत न करता। काश आदमी किसी माल की औज़ अपने गुनाह बेच सकता, किसी उजरत के तौर पर दूसरों की नेकियां मांगने का हक रखता। लाखों लोगों के इस हुजूम में उस 2 सफ़ेद चादरें ओढ़े कौन जानता था सालार कौन था, उसका IQ लेवल क्या था, किसे परवाह थी, उसके पास कौन से और कहाँ की डिग्री थी, किसे होश था, उसने ज़िंदगी के मैदान में कितने तालीमी रिकॉर्ड तोड़े और बनाए थे, किसे खबर थी। वो अपने जहन से कौन से मैदान तस्कीर करने वाला था, कौन रच करने वाला था। वहाँ उस हुजूम में ठोकर खाकर गिरता, बगधर में रौंदा जाता। उसके ऊपर से गुजरने वाली खलकत में से कोई भी ये नहीं सोचता कि उन्होंने कैसे दिमाग को खो दिया था,
किस IQ लेवल के नायाब आदमी को किस तरह ख़त्म कर दिया था। उसे दुनिया में अपनी औकात, अपनी अहमियत का पता चल गया था। अगर कुछ मगालिता रह भी गया था तो अब ख़त्म हो गया था। अगर कुछ शबा बाकी था तो अब दूर हो गया था। फ़कत तकब्बुर, रश्क, आना, खुद पसंदी, खुद सताइशी के हर बचे हुए टुकड़े को निचोड़ कर उसके अंदर से फेंक दिया गया था। वो उन्हीं आलाइशों को दूर करवाने के लिए वहाँ आया था। MBA में उसकी शानदार कामयाबी किसी के लिए भी हैरान कुन नहीं थी। उसके डिपार्टमेंट में हर एक को पहले से उसका अंदाज़ा था। उसके और उसके क्लास फेलोज़ के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट में इतना फ़र्क होता था कि उसके प्रोफेसर्स को ये मानने में कोई आर नहीं था। वो मुकाबले के दौर में 10 गज आगे दौड़ रहा था। MBA के दूसरे साल में उसने इस फासले को और बढ़ा दिया था। उसने इंटर्नशिप अक़वाम मुत्तहिदा के एक एजेंसी में की थी और उसका MBA मुकम्मल होने से पहले उस एजेंसी के अलावा उसके पास 7 मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से ऑफर्स मौजूद थे। तुम अब आगे क्या करना चाहती? उसके रिजल्ट के मतलब जानने के बाद सिकंदर उस्मान ने अपने पास बुलाकर पूछा था। मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ ही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बिजनेस शुरू करो या मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ। सिकंदर उस्मान ने उससे कहा, पापा मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस वाला टेम्परामेंट नहीं है मेरा। मैं जॉब करना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहता। सिकंदर उस्मान हैरान हुई। तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि तुम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, तुम मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में सेटल होना चाहते हो। पहले मैंने अमेरिका में सेटल होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं वहीं रहना चाहता हूँ। क्यों? वो उनसे कहना नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में उसका डिप्रेशन बढ़ जाता है। वो मुसलसल इमामा के बारे में सोचता रहता था। वहाँ हर चीज़ उसे इमामा की याद दिलाती थी। उसके पछतावे और एहसास जुर्म में इजाफा होता जाता था। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता। सिकंदर उस्मान कुछ देर उसे देखते रहे। हालांकि मेरा ख्याल है तुम एडजस्ट हो सकते हो। सालार जानता था उनका इशारा किस तरफ था, मगर वो खामोश रहा। जॉब करना चाहते हो? ठीक है, चंद साल जॉब करो, लेकिन उसके बाद आकर मेरे बिजनेस को देखो। ये सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वो कुछ देर उसे समझाते रहे। सालार खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। एक हफ्ते के बाद वो दोबारा अमेरिका आ गया था। उसके चंद हफ्ते के बाद उसने यूनिवर्सिटी में जॉब करना शुरू कर दी। वो न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क चला गया था। एक नई जिंदगी का आगाज़ था। वहाँ आने के चंद हफ्ते बाद उसे यह अंदाज़ा भी हो गया था कि वो कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता था। वो उसे वहाँ भी उसी तरह याद आ रही थी। उसका एहसास जुर्म वहाँ भी उसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो 16 से 18 घंटे तक काम करने लगा। एक दिन भी 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया और दिन रात की उस मसरूफियत ने उसे बड़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था। अगर एक तरफ काम के उस अंबार ने इसके डिप्रेशन में कमी की थी, तो दूसरी तरफ वो अपने इदारे की नुमाया तरीन वर्कर्स में शामिल होने लगा था। यूनिसेफ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में वो एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका के ममालिक जाने लगा। गुर्बत और बीमारी को पहली दफ़ा अपनी आँखों से इतने करीब से देख रहा था। रिपोर्ट्स और अखबारों में छपने वाले हक़ाइक़ में और उन हक़ाइक़ को अपनी तमाम खुलनाकी के साथ खुली आँख से देखने में बहुत फ़र्क होता है, और ये फ़र्क उसे इस जॉब में ही समझ में आया था। हर रोज़ भूखे सोने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में थी। हर रात पेट भर कर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने वालों की तादाद भी करोड़ों में थी। सिर्फ 3 वक्त का खाना, सर पर छत और जिस्म पर लिबास भी कितनी बड़ी नियामतें थी, उसे तब समझ में आया था। वो यूनिसेफ की टीम के साथ 4 ट्रक तैयारों में सफ़र करते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता। उसने ज़िंदगी में ऐसे कौन से कारनामे अंजाम दिए थे कि उसे वो पुरआसाइश ज़िंदगी दी गई थी जो गुजार रहा था। उन लोगों से क्या गुनाह थे कि वो ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरियात से महरूम, सिर्फ ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में खुराक की उन पैकेट्स के पीछे भागते फिरते थे। वो सारी रात जाकर अपने इदारे में के लिए मुमकिना स्कीमें और प्लान बनाता रहता। कहाँ खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है, किन इलाक़ों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स दरकार थे। वो बाज़ दफ़ा 48 घंटे बगैर सोए काम करता रहता। उसके बनाए प्रपोजल्स और रिपोर्ट्स तकनीकी लिहाज से इतने मजबूत होते थे कि उनमें कोई खामी ढूंढना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता था, और उसकी खुसूसियात उसकी साख और नाम को और भी मुस्तकम करती जा रही थी।
अगर मुझे अल्लाह ने दूसरों से बेहतर ज़हन और सलाहियतें दी हैं तो मुझे उन सलाहियतों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी ला सकूं, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूं। वो काम करते हुए इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता था। यूनिसेफ के लिए काम करने के दौरान ही उसने एमफिल करने का सोचा था और फिर उसने एमफिल में एडमिशन ले लिया था। यूनिक क्लासेस को ज्वाइन करते हुए उसे कतई किसी किस्म का कोई शबा नहीं था कि वो अपने आप को एक बार फिर ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ कर रहा था, मगर उसके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। काम उसका जुनून बन चुका था, या फिर उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर एक मिशन। फुरकान से सालार की पहली मुलाकात अमेरिका से पाकिस्तान आते फ्लाइट के दौरान हुई। वो उसकी साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। वो अमेरिका में डॉक्टर्स की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके वापस आ रहा था, जबकि सालार सिकंदर अपनी बहन अनीता की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहा था। इस लंबी फ्लाइट के दौरान दोनों के दरमियान इब्तिदाई तारुफ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला थमा नहीं। फुरकान उम्र में सालार से काफ़ी बड़ा था। वो 35 साल का था। लंदन स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गया था। वहाँ एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। चंद घंटे आपस में गुफ्तगू करते रहने के बाद फुरकान और वो सोने की तैयारी करने लगे। सालार ने मामूल के मुताबिक अपनी ब्रीफ केस से स्लीपिंग पल्स की गोली पानी के साथ निगल ली। फुरकान ने उसकी उस तमाम कार्रवाई को खामोशी से देखा। जब उसने ब्रीफ केस बंद करके दोबारा रख दिया तो फुरकान ने कहा, अक्सर लोग फ्लाइट के दौरान स्लीपिंग पल्स के बगैर नहीं सो सकते। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा और कहा, मैं स्लीपिंग पल्स के बगैर सो नहीं सकता। फ्लाइट में हूँ या न हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। सोने में मुश्किल पेश आती है। फुरकान को एकदम कुछ तजस्सुस हुआ। मुश्किल? सालार मुस्कुराया, मैं सरे से सो ही नहीं सकता। मैं स्लीपिंग पल्स लेता हूँ और 3-4 घंटे सो लेता हूँ। इंसोमेनिया? फुरकान ने पूछा। शायद। मैंने डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया, मगर शायद ये वही है। सालार ने कदर लापरवाही से कहा, तुम्हें चेकअप करवाना चाहिए। इस उम्र में इंसोमेनिया ये कोई बहुत सेहतमंद अलामत नहीं है। मेरा ख्याल है तुम काम के पीछे जुनूनी हो चुके हो और इसी वजह से तुमने अपनी सोने की नॉर्मल रूटीन को खराब कर लिया है। फुरकान अब किसी डॉक्टर की तरह बोल रहा था। सालार मुस्कुराते हुए सुनता रहा। वो उसे नहीं बता सकता था कि वो अगर रात दिन मुसलसल काम न करे तो उस एहसास जुर्म के साथ जिंदा नहीं रह सकता था जिसे महसूस करता है। वो उसे ये भी नहीं बता सकता था कि स्लीपिंग पल्स के बगैर सोने की कोशिश करे तो भी मामा के बारे में सोचने लगता है। इस हद तक कि उसे अपना सर दर्द से फटता महसूस होने लगता है। कितने घंटे काम करते हुए एक दिन में? फुरकान अब पूछ रहा था। 18 घंटे, 5 दफ़ा 20। माय गुडनेस। और कब से? 2-3 साल से। और तभी से नींद का मसला होगा तुम्हें। मैंने ठीक अंदाजा लगाया। तुमने खुद अपनी रूटीन खराब कर ली है। फुरकान ने उससे कहा, बोला इतने घंटे काम करने वाले आदमी को तो जहनी थकन एक लंबी और पुरसुकून नींद सुला देती है। ये मेरे साथ नहीं होता। सालार ने मध्यम लहजे में कहा, यही तो तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सालार इसे नहीं कह सका कि वजह जानता है। कुछ देर की खामोशी के बाद फुरकान ने उससे कहा, मैं अगर तुम्हें कुछ आयतें बताऊं रात को सोने से पहले तो तुम पढ़ सकोगे? क्यों नहीं पढ़ सकूंगा। सालार ने गर्दन मोड़कर उससे कहा, नहीं, असल में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं और ख़ास तौर पर तालीम मगरिब में हासिल करते हैं वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते या उन्हें प्रैक्टिकल नहीं समझते। फुरकान ने वजाहत की। फुरकान, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। सालार ने इस तरह लेटे पुरसुकून अंदाज में कहा। फुरकान को जैसे करंट लगा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक सपारा पढ़कर सोता हूँ। मेरे साथ यकीन या एतमाद का कोई मसला नहीं है। सालार ने बात जारी रखी। मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ, फुरकान ने बताया। सालार ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए उसे देखा। ये यकीन एक खुशगवार इत्तेफाक था। अगरचे फुरकान ने दाढ़ी रखी हुई थी, मगर सालार को फिर भी यह अंदाज़ा नहीं हो पाया था कि वो हाफिज़ कुरान है। फिर तो तुम्हें इस तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करके सोने वाले इंसान को नींद न आए, मुझे अजीब लगता है। सालार ने फुरकान को बड़बड़ाते सुना। वो अब अपने हवास को हल्का हल्का मफलूज पा रहा था। नींद उस पर गुलबा पा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। तुम्हें कोई परेशानी है? उसने फुरकान की आवाज़ सुनी। वो नींद की गोलियों के ज़ेर असर न होता तो मुस्कुराकर इनकार कर देता, मगर वो जिस हालत में था उसमें वो इनकार नहीं कर सका। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुझे सुकून नहीं है। मुझे लगता है मैं मुसलसल किसी सहरा में सफ़र कर रहा हूँ। पछतावे और एहसास जुर्म मुझे छोड़ते ही नहीं। मुझे किसी पीर कामिल की तलाश है जो मुझे इस तकलीफ से निकाल दे, जो मुझे मेरी ज़िंदगी का रास्ता दिखा दे।
फुरकान दम बखुद उसका चेहरा देख रहा था। सालार की आंखें बंद थी, मगर वो उसकी आंखों की कोनों से निकलती नमी को देख रहा था। उसकी आवाज़ में भी बेरफ्ती और लड़खड़ाहट थी। वो उस रात लाशऊरी तौर पर स्लीपिंग पल्स के ज़ेर असर बोल रहा था। वो अब खामोश हो चुका था। फुरकान ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। बहुत हमवार अंदाज में चलने वाली उसकी सांस बता रही थी कि वो नींद में जा चुका था। जहाज में होने वाली वो मुलाकात वहीं खत्म नहीं हुई। वो दोनों जागने के बाद भी आपस में गुफ्तगू करते रहे। फुरकान ने सालार से उन चंद जुमलों के बारे में नहीं पूछा था जो उसने नींद के आगोश में समाते हुए बोले थे। उस सालार को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने सोने से पहले उससे कुछ कहा था। अगर कहा था तो क्या कहा था। सफ़र खत्म होने से पहले उन दोनों ने आपस में कॉन्टेक्ट नंबर्स और एड्रेस का तबादला किया। फिर सालार ने उसे अनीता की शादी पर इनवाइट किया। फुरकान ने आने का वादा किया, मगर सालार को उसका यकीन नहीं था। उन दोनों की फ़्लाइट कराची तक थी। फिर सालार को इस्लामाबाद की फ़्लाइट लेनी थी, जबकि फुरकान को लाहौर की। एयरपोर्ट पर फुरकान ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे अलविदाई मुसाफा किया। अनीता की शादी 3 दिन बाद थी और सालार के पास उन 3 दिनों के लिए भी बहुत से काम थे। कुछ शादी की मसरूफियात और कुछ उसके अपने मसले। वो अगले दिन शाम को उस वक्त हैरान हुआ जब फुरकान ने उसे फ़ोन किया। 10-15 मिनट दोनों की गुफ्तगू होती रही। फ़ोन बंद करने से पहले सालार ने एक बार फिर उसे अनीता की शादी के बारे में याद दिलाया। एक कोई याद दिलाने वाली बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं वैसे भी इस वीकेंड पर इस्लामाबाद में हूँगा, फुरकान ने जवाबन कहा। वहाँ मुझे अपने गांव में अपना स्कूल देखने भी जाना है। उसकी बिल्डिंग में कुछ इजाफी तामीर हो रही है। इसी सिलसिले में तो इस्लामाबाद में इस बार मेरा क़याम कुछ लंबाई होगा। सालार ने उसकी बात को कुछ दिलचस्पी से सुना। गाँव, स्कूल, क्या मतलब? एक स्कूल चला रहा हूँ मैं वहाँ अपने गाँव में। फुरकान इस्लामाबाद की नवाही इलाक़ों में से एक का नाम लिया, बल्कि कई सालों से। किस लिए? किस लिए? फुरकान को उसके सवाल ने हैरान किया। लोगों की मदद के लिए। किस लिए? चैरिटी वर्क है? नहीं, चैरिटी वर्क नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। किसी पर कोई एहसान नहीं है। फुरकान ने बात करते करते मौजू बदल दिया। स्कूल के बारे में मज़ीद गुफ्तगू नहीं हुई और फ़ोन बंद हो गया। फुरकान अनीता की शादी में वाकई आ गया था। वो खासी देर वहाँ रुका रहा, मगर सालार को महसूस हुआ कि वो कुछ हैरान था। तुम्हारी फैमिली तो खासी मगरिब ज़दा है। सालार को एकदम उसकी उलझन और हैरानी की वजह समझ में आ गई। मेरा ख्याल था कि तुम्हारी फैमिली कुछ कंजर्वेटिव सी होगी, क्योंकि तुमने बताया था कि तुम हाफिज़ कुरान हो और तुम्हारा लाइफ स्टाइल मुझे कुछ सादा सा लगा। मगर यहाँ आकर मुझे हैरानी हुई। तुम और तुम्हारी फैमिली में बहुत फ़र्क है। आई थिंक यू आर द ऑड वन आउट। वो अपने आखिरी जुमले पर खुद ही मुस्कुरा दिया। वो दोनों फुरकान की गाड़ी के करीब पहुँच चुके थे। मैंने सिर्फ 2 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया और 2-3 साल से ही मैं ऑड ऑन आउट हुआ हूँ। पहले मैं अपनी फैमिली से भी ज़्यादा मगरिब ज़दा था, उसने फुरकान को बताया। 2 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया अमेरिका में अपने स्टडीज़ के दौरान। मुझे यकीन नहीं आ रहा। फुरकान ने बेयकीनी से सर हिलाया। कितने अरसे में किया? तकरीबन 8 माह में। फुरकान कुछ देर तक कुछ नहीं कह सका। वो सिर्फ उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने गहरा सांस लेकर सताइशी नज़रों से उसे देखा। तुम पर अल्लाह का कोई ख़ास ही करम है, वरना जो कुछ तुम मुझे बता रहे हो आसान काम नहीं है। मैं फ़्लाइट में भी तुम्हारे कारनामों से काफ़ी मुतासिर हुआ था, क्योंकि जिस उम्र में यूनेस्को में जिस सीट पर तुम काम कर रहे हो हर कोई नहीं कर सकता। उसने एक बार फिर बड़ी गर्मजोशी के साथ सालार से हाथ मिलाया। चंद लम्हों के लिए सालार के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। अल्लाह का ख़ास करम। अगर मैं इसे बता दूं कि मैं सारी ज़िंदगी क्या करता हूँ तो ये। सालार ने उसे हाथ मिलाते हुए सोचा। तुम परसों किसी स्कूल की बात कर रहे थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर मौजूद तब बदला। तुम इस्लामाबाद में नहीं रहते? नहीं, मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ, मगर मेरा एक गांव है, आबाई गांव। वहाँ हमारी कुछ ज़मीन है, एक घर भी था। फुरकान से तफसील से बताने लगा। कई साल पहले मेरे वालिदैन इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। मेरे वालिद ने फेडरल सर्विस से रिटायरमेंट के बाद वहाँ अपनी ज़मीनों पर एक स्कूल बना लिया। उस गांव में कोई स्कूल नहीं था, उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाया था। 7-8 साल से मैं उसे देख रहा हूँ। अब वो सेकेंडरी स्कूल बन चुका है। 4 साल पहले मैंने वहाँ एक डिस्पेंसरी भी बनवाई। तुम उस डिस्पेंसरी को देखकर हैरान रह जाओगे। बहुत जदीद सामान है उसमें। मेरे एक दोस्त ने एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट किया। अब सिर्फ मेरे गांव की नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के बहुत सारे गांव के लोग भी स्कूल और डिस्पेंसरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। सालार उसकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। मगर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम एक सर्जन हो, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? और उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है।
क्यों कर रहा हूँ ये तो मैंने अपने आप से कभी नहीं पूछा। मेरे गांव में इतनी गुर्बती के सवाल पूछने की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग बचपन में कभी कभार अपने गांव जाया करते थे, हमारे लिए तफरीक थी। हमारी हवेली के अलावा गांव का कोई मकान पक्का नहीं था और सड़क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सबको यूं लगता था जैसे हम जंगल में आ गए हैं। अब अगर हम जानवर होते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शहर की तरह हम जंगल में दंदनाते फिरते। ये सोच करके सब हम सबसे मरूब है, कोई भी हमारे जैसा नहीं, न कोई हमारी तरह रहता है, न हमारे जैसा खाता है, न हमारे जैसा पहनता है। मगर इंसान होकर ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे इर्द गिर्द के इंसान जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हो सकता है कुछ इंसानों को उससे खुशी महसूस होती हो कि उन्हें हर नियामत मैसर है और बाकी सब तरस रहे, मगर हमारा शुमार ऐसे लोगों में नहीं होता था। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या किया जाए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं कि मैं उसे हिलाता और सब कुछ बदल देता, नहीं बेशुमार वसाइल। तुम्हें मैंने बताया है ना कि मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे, ईमानदार किस्म के सिविल सर्वेंट। मैं और मेरा भाई दोनों शुरू से स्कॉलरशिप पर पढ़ते रहे, इसलिए हम पर हमारे वालिदैन को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। खुद वो भी कोई फजूल खर्च नहीं थे, इसलिए थोड़ी बहुत बचत होती रही। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद ने सोचा कि लाहौर या इस्लामाबाद के किसी घर में अखबार पढ़कर, वॉक करके या टीवी देखकर ज़िंदगी गुजारने की बजाय उन्हें अपने गांव जाना चाहिए, वहाँ कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मुश्किलात का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। गांव में न बिजली थी, न साफ पानी, कुछ भी नहीं था। बाबा ने पता नहीं कहाँ भाग कर सारी चीज़ें मंजूर करवाईं। जब वहाँ प्राइमरी स्कूल बन गया, एक सड़क भी आ गई, बिजली और पानी जैसी सहूलतें भी आ गई, तो गवर्नमेंट को अचानक वहाँ एक स्कूल बनाने का ख्याल आया। मेरे वालिदैन की खुशी थी कि गवर्नमेंट उनके स्कूल को अपने ज़ेर निगरानी ले ले। उसने अपने टीचर्स भिजवाए और कुछ अरसे के बाद उस स्कूल को अपग्रेड कर दे। मगर महकमा तालीम के साथ चंद राबिता में ही बाबा को अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा होने की सूरत में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बाबा वहाँ बच्चों को सब कुछ देते थे, किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म और ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें। उन्होंने बाकायदा उसके लिए फंड्स रखे हुए थे। मगर तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पास चले जाने के बाद उस स्कूल का क्या असर होता। सबसे पहले वो फंड्स जाते, फिर बाकी सब कुछ। इसलिए बाबा खुद ही उस स्कूल को चलाते रहे। महकमा तालीम ने वहाँ स्कूल फिर भी खोला, मगर वहाँ एक बच्चा भी नहीं गया। फिर हार मानकर उन्होंने वो स्कूल बंद कर दिया और हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दिया। बाबा के कुछ दोस्तों ने इस सिलसिले में उनकी मदद की। इसी तरह उसकी अपग्रेडिंग होती गई। मैं उन दिनों लंदन में पढ़ता था और मैं रुपए बचा बचा कर भेजा करता था। अभी भी हम उसको और तरक्की दे रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को हमारे पास भिजवाते हैं। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मैंने वहाँ एक बाज़ाबिता किस्म की डिस्पेंसरी कायम की। गांव की आबादी भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन गांव में गुर्बत अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। तालीम से इतना ज़रूर हुआ है कि गांव के कुछ बच्चे बाहर शहर में आगे पढ़ने के लिए जाने लगे, कुछ मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं। वो जो गुर्बत का एक चक्कर था वो ख़त्म हो रहा है। उनकी ये नस्लें नहीं तो अगली नस्लें शायद तुम्हारे और मेरे जैसे तालीमी इदारों से आला डिग्रीज लेकर निकले। कौन कह सकता है, मुस्कुराते हुए बोला। मैं हर माह एक वीकेंड पर गांव जाता हूँ। वहाँ 2 कंपाउंडर हैं, मगर कोई डॉक्टर नहीं है। एक वीकेंड पर मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी 3 वीकेंड्स पर भी हम किसी न किसी को वहाँ भिजवा देते हैं। फिर मैं वहाँ हर 3 माह बाद एक मेडिकल कैंप लगवाता हूँ। और इस सब के लिए रुपया कहाँ से आता है? शुरू में तो ये बाबा का रुपया था। उन्हीं की ज़मीन पर स्कूल बना, उनकी ग्रेजुएटी से उसकी तामीर हुई। मेरी अम्मी ने भी अपने पास मौजूद रकम से उनकी मदद की। फिर बाबा के कुछ दोस्त भी हमारी इमदाद करने लगे। उसके बाद मैं और मेहरान भी उसमें शामिल हो गए। फिर मेरे कुछ दोस्त भी। मैं अपनी इनकम का एक खासा हिस्सा हर माह गाँव भिजवा देता हूँ। उससे डिस्पेंसरी बड़े आराम से चलती रही। जो डॉक्टर वहाँ महीने के 3 वीक एंड पर जाते हैं वो कुछ चार्ज नहीं करती। उनके लिए सोशल वर्क है। मेडिकल कैंप्स भी इसी तरह के लग जाते हैं। और स्कूल के पास अब इतने फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो चुके हैं, उनसे आने वाली रकम टीचर्स की तनख्वाह और दूसरे अखराजात के लिए काफ़ी होती है। हम चंद सालों में वहाँ टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कुछ काम करना चाहते हैं। तुम कब जा रहे हो वहाँ? मैं तो सुबह निकल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँ, सालार ने कहा। मोस्ट वेलकम, मगर कल तो वलीमा होगा, तुम यहाँ मसरूफ़ होंगे, फुरकान ने इसे याद दिलाया। वलीमा तो रात को है, सारा दिन तो मैं फारिग हूँ, क्या रात तक पहुँचना मुश्किल होगा?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत आसानी से पहुंच सकते हो, सिर्फ सुबह को जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर तुम वाकई वहाँ चंद घंटे गुजारना चाहते हो, वरना फिर तुम वापस आकर खासे थक जाओगे, फुरकान ने उससे कहा। मैं नहीं थकूंगा। मैंने सिर्फ की टीम्स के साथ कैसे कैसे इलाकों में सफ़र करता रहा हूँ, तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। मैं फजर के बाद तैयार हूँगा, तुम मुझे वक्त बता दो। 5:30। ओके, तुम घर से निकलते मुझे एक बार मोबाइल पर कॉल कर लेना और 2-3 बार हॉर्न देना, यहाँ आकर मैं निकल आऊँगा, उसने फुरकान से कहा। फिर खुदा हाफिज कहता हुआ अंदर मुड़ गया। अगली सुबह फुरकान ठीक 5:30 बजे उसके गेट पर हॉर्न दे रहा था और सालार पहले ही हॉर्न पर बाहर था। तुम वापस पाकिस्तान क्यों आ गई? तुम इंग्लैंड में बहुत आगे जा सकते थे। गाड़ी शहर से बाहर वाली सड़क पर भाग रही थी। उन्हें सफ़र करते आधा घंटा हो गया था जब फुरकान से अचानक उसने पूछा। इंग्लैंड को मेरी ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान को थी, इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया, फुरकान ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। वहाँ एक डॉक्टर फुरकान के न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ एक डॉक्टर फुरकान के न होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ मेरी खिदमत की ज़रूरत है, उसने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। मगर वहाँ इतने सालों में तुम बहुत आगे जा सकते थे, फिर प्रोफेशनली भी तुम बहुत कुछ सीखते, फाइनेंशियली भी तुम इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा रुपए हासिल कर सकते थे जो तुमने शुरू किया हुआ है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान में तुम इतने कामयाब नहीं हो सकते, सालार ने कहा। अगर कामयाबी से मुराद पाउंड्स की तादाद और सहूलतों से है तो हाँ, दोनों जगहों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा इशारा इलाज की तरफ है तो मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी बांट रहा हूँ। जो इत्मीनान डॉक्टर अपने सेहतयाब होने वाले मरीज़ को देखकर हासिल करता है, तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। इंग्लैंड ऑन्कोलॉजिस्ट से भरा हुआ है, पाकिस्तान में उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मैं वहाँ रहकर पैसों का ढेर भी यहाँ भिजवाता रहता तो कोई फ़र्क न पड़ता। जहाँ एक फ़र्द की कमी होती है वहाँ उस फ़र्द से ही वो कमी पूरी होती है। रुपया दूसरी कोई चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकता। मैं बहुत कानियाँ हूँ सालार, मेरी पूरी फैमिली बहुत कानियाँ है। अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है तो वो सबसे पहले मेरे अपने लोगों के काम आनी चाहिए। मैं अपने लोगों को मरता छोड़कर दूसरे लोगों की ज़िंदगी नहीं बचा सकता। पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ खराब है, कुछ भी ठीक नहीं। सहूलतों से खाली हॉस्पिटल्स और हद से ज़्यादा बुरा और क्रिप्ट हेल्थ सिस्टम। जिस बुराई और खामी का सोचो यहाँ है, मगर मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे हाथ में शिफा है तो फिर सबसे पहले ये शिफा मेरे अपने लोगों के हिस्से में आनी चाहिए। सालार बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सका। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई थी। तुमने मुझसे सवाल पूछ लिया कि मैं पाकिस्तान क्यों आ गया। क्या अब मैं तुमसे सवाल पूछे कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाती? फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ नहीं रह सकता, सालार ने बेख्तियार कहा। तुम पैसा और सहूलतों की वजह से कह रहे हो? नहीं, पैसा है सहूलतें मेरा मसला नहीं, न अब नहीं पहले कभी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जान चुके हो। फिर कुछ भी नहीं, बस मैं यहाँ नहीं आ सकता, इसने कतई लहजे में कहा। यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। किसको? इस मुल्क को। सालार बेख्तियार मुस्कुराया। मैं तुम्हारी तरह की हुब्बुल वतनी नहीं रखता, मेरे बगैर भी सब कुछ ठीक है यहाँ। एक डॉक्टर की और बात है, मगर एक इकोनॉमिस्ट तो किसी को ज़िंदगी और मौत नहीं दे सकता। तुम जो सर्विस वहाँ दे रहे हो यहाँ के इदारों को दे सकते हो। जो कुछ अपने लेक्चरर्स में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सिखा रहे हो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सिखा सकते हो। उसका दिल चाहे फुरकान से कहे कि वो यहाँ कर कुछ भी सिखाने के काबिल नहीं रह सकेगा, मगर वो खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। तुमने अफ्रीका की गुर्बत, भूख और बीमारी देखी है, तुम यहाँ की गुर्बत, भूख और बीमारी देखोगे तो हैरान रह जाओगे। यहाँ सूरत हाल उन मुल्कों की तरह ख़राब नहीं है फुरकान, यहाँ इतनी पसमानदगी नहीं है। इस्लामाबाद के जिस सेक्टर में तुम पले बड़े वहाँ रहकर इर्द गिर्द की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। तुम इस्लामाबाद के करीबी गांव में चले जाओ तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुल्क कितना खुशहाल है। फुरकान, मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। सालार ने एकदम बात का मौजू बदलना चाहा। सालार, मेरे इस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर ऐसा कोई काम करना चाहते हो तो तुम खुद किसी गांव में इस तरह का काम शुरू करो। तुम्हारे पास फंड्स की कमी नहीं होगी। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अमेरिका में बैठ कर ये सब नहीं चला सकता। तुम अगर ये चाहते हो तो कि किसी दूसरे गांव में भी कोई स्कूल कायम किया जाए तो मैं इसे
سپورٹ کرنے کو تیار ہوں، میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اسرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کی یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپنسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا اور ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بےحد پروفیشنل اور بےحد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا تھا۔ وہ وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھی۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا اور ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا۔ اسے اس گاؤں میں اس قسم کے شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت آرٹسٹک، وہ تعریف کے بغیر نہیں رہ سکا۔ اے شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی۔ یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سالار کو یاد تھا۔ ہاں، وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکینڈ یہاں گزارتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے۔ اس لائٹس اس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپنسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی، اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتی۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بالکل بھول جاتا ہے۔ فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کی والد فائنانس ڈویژن میں ہی کام کرتے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ یہ جان کر کے کہ سالار کا تعلق بھی فائنانس سے ہی تھا، ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ سالار کو ان سے باتیں کرتے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ سالار نے ان سے اس اسکول کے حوالے سے بات کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاک بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپنسری کے لیے کرو۔ ہم ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے، مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہوگی، ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپنسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی NGO کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ ملتی رہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈس نے، میری واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے۔
हमें कभी किसी हुकूमती या बैनुल अक़वामी एजेंसी की ग्रांट की ज़रूरत नहीं पड़ी। कब तक यूनेस्को आकर हमारे लोगों की भूख, जहालत और बीमारी ख़त्म करते रहेगी? जो काम हम अपने वसाइल से कर सकते हो, हमें अपने वसाइल से ही करने चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप इस प्रोजेक्ट को और बढ़ाएं, सालार बेख्तियार बोलते हुए लड़खड़ाया। ये बहुत बढ़ जाएगा। तुम 20 साल बाद यहाँ आकर देखोगे तो ये गांव नहीं, एक गांव तुम्हें एक मुख्तलिफ गांव मिलेगा। जितनी गुर्बत तुमने आज यहाँ देखी हो तब नहीं होगी, उनका कल आज से मुख्तलिफ होगा। फुरकान के वालिद ने बेहद इत्मीनान से कहा। सालार चुपचाप उन्हें देखता रहा। सहपेर के करीब उसे फुरकान ने डिस्पेंसरी से फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद उसने सालार से कहा, अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि खुद तुम्हें वापस छोड़ कर आऊँ, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गाँव से आते हैं, अगर मैं उन्हें आज चेक नहीं कर सका तो उन्हें बहुत जहमत होगी, इसलिए मैं अपने डिस्पेंसर को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। उसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सालार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिल लेना, उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। सालार ने एक बार फिर फुरकान के वालिदैन के साथ चाय पी। गाड़ी तब तक वहाँ आ चुकी थी। फिर वो वहाँ से गाड़ी में फुरकान के पास चला गया। सुबह वाली भीड़ अब कम हो चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ 25-30 के करीब लोग थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सालार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में उन्हें छोड़ कर आता हूँ, उसने मरीज से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सालार के साथ चलता हुआ बाहर गाड़ी तक आया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो? उसने सालार से पूछा। 1.5 हफ्ता। फिर तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही इस्लामाबाद और यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? सालार ने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इनवाइट करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज में मुस्कुराया। सालार उससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सालार नहीं जानता था उसे कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान के इतने करीब ले आई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था। वो उसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ उसका गांव देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर गया। वो वहाँ 1 दिन के लिए गया था और उसने फुरकान को फ़ोन पर उसकी इत्तला दी। फुरकान ने उसे एयरपोर्ट पर पिक करने और अपने साथ रहने की ऑफ़र की, मगर उसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब उसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर वो खामोशी से खड़ा हो गया। अंदर से एकदम किसी बच्चे के भागने की आवाज़ आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह से दरवाजे में आने वाली झरी से उसको देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सालार उसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया था, मगर उस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वो बड़ी संजीदगी से सालार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। उस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासिलत थी कि उसके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं थी कि फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते, उसे बड़ी संजीदगी से इत्तला दी गई। मुझसे मिल लेंगे, सालार ने कदरे महफूज होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फौरन जवाब आया। क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ। आप उन्हें जाकर बताएंगे कि सालार अंकल आए तो वो मुझसे मिल लेंगे। सालार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो उसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं? सालार को बेख्तियार हंसी आ गई। आप ना हंसे। वो बेख्तियार बिगड़ी। सालार पंजब के बल उसके मुकाबिल बैठ गया। अच्छा मैं नहीं हंसता। उसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हो। आप कुछ करीब से इसका जायज़ा लेते हुए बोला। उसकी तारीफ ने दरवाजे की झरी में से झांकती हुई मोहतरमा के तासुरात और मोड़ में कुछ तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके जुमले से ज़्यादा उसके तासुरात ने सालार को महफूज किया। वह कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। क्यों अच्छा नहीं लगा? उसने मुस्कुराते इत्मीनान से पूछा। बस नहीं अच्छे लगे। उसने नागवारी से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका? वो कुछ देर से देखती रही, फिर उसने कहा, इमामा। सालार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने दरवाजे की झरी में से इमामा के अक़ब में फुरकान को देखा और इमामा को उठाते हुए दरवाज़ा खोल रहा था। सालार खड़ा हो गया। फुरकान नहा कर निकला था। उसके बाल गीले और बेतरतीब थे। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने उससे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, उसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे।
इमामा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और उसे मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे फुरकान मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। अंकल सालार से मिलिए आप? फुरकान ने सालार को बैठने का इशारा करते हुए इमामा से पूछा। वो अब खुद भी सोफे पर बैठ रहा था। ये मुझे अच्छी नहीं लगती, उसने बाप तक अपनी नापसंदीदगी पहुंचाई। बहुत बुरी बात है इमामा, ऐसे नहीं कहते, फुरकान ने सर जिंच करते हुए अंदाज में कहा। आप अंकल के पास जाए, उनसे हाथ मिलाएं। उसने इमामा को नीचे उतार दिया और सालार की तरफ जाने की बजाय एकदम भागते हुए बाहर चली गई। हैरानी की बात है कि उससे तुम अच्छे नहीं लगे, वरना उसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज उसका मूड भी कुछ ऑफ है, फुरकान ने मुस्कुराते वजाहत की। ये नाम का असर है, मुझे हैरानी होती है अगर उससे मैं अच्छा लगता, सालार ने सोचा। चाय पीते हुए दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बातों के दौरान सालार ने उससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोगों की डिस्पेंसरी में डॉक्टर आ जाएगा, उसने सरसरी अंदाज में कहा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, फुरकान एकदम खुश हुआ। और इस बार वो डॉक्टर वहाँ रहेगा, अगर न रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा है। उसकी ज़रूरत नहीं है। उर्का, वहाँ जाने से पहले मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली उस काम को इस स्केल और इतनी ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हो। मैं तुम लोगों के काम से दरहकीकत बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मेरी ऑफर अभी भी वही है। मैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, उसने संजीदगी से फुरकान से कहा। सालार, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं चाहूँगा तुम इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट वहाँ किसी दूसरे गांव में शुरू करो। तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ज़राए, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट चला सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरा मसला वक्त है। मैं तुम्हारे जितना वक्त नहीं दे सकता और फिर मैं पाकिस्तान में रह भी नहीं सकता। तुम्हारी तरह मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते। सालार ने अपना मसला बताया। चलो इस पर बाद में बात करेंगे, अभी तो तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, फुरकान ने मौजू बदलते हुए कहा। कहाँ? ये तो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा, वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया।